Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful, beautiful morning to start with today's current affair. So I just want to start our day by saying this: that some days will feel heavy, some days will feel like full with pressure, and that's absolutely okay because this is your journey that you have chosen, right? And I can tell you that you'll have beautiful paths also. So do what you can do today, right? Even a small effort will count. So make sure that whatever you are choosing, whatever you are doing today, make sure that you are choosing it wisely because impact of this action will be tomorrow also, right? So with consistency you have to work, not with pressure, right? And this will build the success. So make sure that you are working in this way. So with this beautiful thought, we'll start our day. Let's move to first current affair of today's. So first current affair says India the beautiful, but first India the functional. Very important, as in this news we'll talk different things. What is the requirement? What are the changes that we have to do? Right? Basically globally also where India is moving. What are the changes that we are bringing? So we are going to discuss all of these, and with that we'll understand how we have to attempt questions if it comes in prelims, right? Because it will for surely, and we have to understand what are the keywords that we can take out from this, as it will help you to write in the mains answer also. ठीक है, अब imagine करो there is a country, ठीक है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है, और सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, इट इज लाइक फुल ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ऐसे सोचो कि यहाँ पे माउंटेन्स भी है, रिवर्स भी है, बीचेस आर देयर, फॉरेस्ट आर देयर, रिच वाइल्ड लाइफ इज देयर, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, रिलीजियस इज देयर, राइट, कल्चर इज देयर, फेस्टिवल्स आर देयर, राइट, एंड ह्यूज पॉपुलेशन, राइट, इफ यू रिमेंबर yesterday's news about the population we have covered, right, young population is there, right, which is full of talent, full of energy, although some measures are required which we have to work on as we have discussed in the yesterday's class. But again, India is beautiful, right? This is what people often say. So from the Himalaya to the beaches of Goa, from classical music to Bollywood, from like festival of religious to a strong democratic system, right? India is amazing in its way. बट यहाँ पर इस न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करे गए हैं। उन्होंने बोला दैट यस, इंडिया इज ब्यूटीफुल, नो डाउट इन दैट, बट बिफोर मेकिंग इंडिया लुक ब्यूटीफुल वी मस्ट वर्क इन इंडिया प्रॉपरली। अब ये इसमें इस लाइन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर बात की गई है कि सिर्फ ब्यूटी इज नॉट इनफ, ठीक है, कंट्री का फंक्शनल होना बहुत जरूरी है, राइट? सो व्हाट इज द वर्ड मेंशन ओवर हियर, दैट इट शुड बी फंक्शनल, ठीक है। जो वो सुंदरता है दैट्स लाइक फ्रॉम द आउटसाइड, बट इंटरनली वी हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स, और वही सारी चीजें यहाँ पे एज अ पॉइंटर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर फंक्शनल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को उनकी ड्यूटी प्रॉपरली करनी चाहिए, जो लॉज हैं, राइट, वो सिर्फ फॉलोड नहीं, सिर्फ इन्फोर्स नहीं, वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड रियलिटी पर भी दिखने चाहिए, राइट। सो पीपल शुड लाइक फील सेफ, है ना, उनको एक सिक्योर जो फीलिंग है वो मिलनी चाहिए, एंड दे शुड बी ऑल्सो ट्रीटेड फेयर एज वेल, ठीक है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रीटेड फेयरली, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यूजीसी का कंसेप्ट, राइट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे दिस न्यूज ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स द हाउस, फिर उसके बाद इसकी डेकोरेशन करना शुरू करो, ठीक है। इफ द फाउंडेशन इज वीक तो डेकोरेशन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। आप पहले क्या देखते हो? पहले उसका सेफ्टी कंसर्न देखते हो। ये तो नहीं है ना कि पहले पर्दे डिसाइड कर दिए, घर का मुझे डिसाइड ही नहीं हुआ, राइट, सेफ्टी कंसर्न्स डिसाइड नहीं हुए, नहीं, पर्दे तो आप बाद में देखते हो, डेकोरेशन आप बाद में देखते हो। सबसे पहले व्हाट यू फोकस ऑन, आप लोग फोकस करते हैं सबसे पहले घर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, कोई चोर ना आ जाए, ठीक है, अगर कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर है तो हमारा घर गिर ना जाए, यू फोकस ऑन दैट, राइट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो फंक्शनल इंडिया की बात हो रही है। इसका मतलब है कि गवर्नेंस जो है वो हमारे पास इफेक्टिव होनी चाहिए, राइट। व्हाट वी आर फोकसिंग है कि हमारी गवर्नमेंट इफेक्टिव होनी चाहिए। effective constitution should be there, right, government system that actually delivers services, right, मतलब strong institution होना चाहिए, courts अच्छे होने चाहिए, पुलिस, bureaucracy, right, जो बिना किसी bottlenecks के काम करे, right, rule of law की बात करें तो यहाँ पे laws which are not only enforced fairly, right, but वो consistently काम भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद people centric administration होना चाहिए, public services that reaches citizens quickly, मतलब red tapeism एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हैं, राइट। इतने सारे ज्यादा स्टेप्स नहीं होने चाहिए कि देयर इज अ गैप बिटवीन पीपल, राइट, सिटीजंस एंड बेसिकली स्टेट, राइट। तो यहाँ पर वो चीज की बात की गई है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट, मतलब ब्यूटी इज नाइस, ठीक है,
बट फंक्शनैलिटी जो है वो डिग्निटी और प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड करता है, और उसी की तरफ हमें काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्यूटीफुल हाईवे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वहां पर गवर्नमेंट ने पेड़ लगा दिए, पौधे लगा दिए, और जाते हुए बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। बट अ हाईवे दैट रिड्यूसेस ट्रेवल टाइम, जो इंप्रूव करेगा सेफ्टी को, बूस्ट करेगा ट्रेड को, वही तो फंक्शनल होगा। अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इज ग्रेट, बट एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जॉब्स, ठीक है, जो हर किसी सिटीजन के पास पहुंचे, और ये सारी चीजें पहुंचे ही नहीं, वो फंक्शनल भी हो, दैट विल बी efficient, that is important. So this basically idea tells us that the usual narrative that we should like promote, you know image or prestige first, instead the editorial, instead this news is basically talking about कि हमें अपने रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए, अपने इम्पैक्ट पे फोकस करना चाहिए, अपने फंक्शनल यू नो अपने फंक्शनैलिटी पर पहले फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर किस किस चीज की, किस किस पॉइंटर की, किस किस यू नो नेगेटिव भी बात करेंगे, और कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें भी बात करेंगे, ठीक है। ईयू से लेकर हमारा यूजीसी तक जितना भी बेसिकली हमारे अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे मेंशन ये भी किया गया है दैट हाउ वी कैन सॉल्व दिस, ठीक है। अब अगेन, this is written by some human being, right? News is provided to us, it is presented to us, and there is some viewpoints of it. You also can have different viewpoints, okay? So make sure that you are coming with that. Now when we talk about this news, तो यहाँ पर बात की गई है इंडिया द ब्यूटीफुल वर्सेस इंडिया द फंक्शनल, राइट। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया ग्लोबल स्पॉटलाइट में है क्यों। तो अभी के टाइम पे इंडिया हैज बीन क्रेज्ड ग्लोबली, बहुत रीजंस रहे हैं, हमने न्यूज में भी कवर करा है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप देखने को मिली है, G20 लीडरशिप था, राइट, EU US का टाई, वो सब कुछ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे पास आए हैं, हाईवेज आर देयर, रेलवेज आर देयर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर देयर, राइट। कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें तो योगा, सॉफ्ट पावर, ठीक है, और ये सारी चीजें हमारे पास आ रही है। उसके बाद में फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इज आल्सो देयर, है ना। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज हैपनिंग कि इंडिया ऑफन लुक्स इंप्रेसिव फ्रॉम द आउटसाइड, बट यहाँ पर इस न्यूज में मेंशन किया गया है दैट दिस इज गिविंग अस अ warning that it's not enough to put a new coat of paint on the house if the foundation is weak, ठीक है। पेंट क्या करेगा इमेज है, प्रेस्टीज होगा, ठीक है, ग्लोबल प्रेज मिल जाएगी इससे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ग्रैंड अनाउंसमेंट्स हो जाएगी। फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन इंस्टीट्यूशन, फाउंडेशन हमारा जस्टिस सिस्टम, फाउंडेशन है गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी। अगर ये चीज नहीं ठीक होंगी तो पेंट कभी ना कभी तो उतरेगा, और जैसे ही वो पेंट उतरेगा तो रियलिटी हमारे सामने आएगी, राइट। तो यहाँ पर इस न्यूज में बात की गई है दैट इंडिया में लुक स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड, बट रियल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम हाउ वेल द कंट्री वर्क फॉर इट्स ओन पीपल, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। अब पहले कनेक्ट करेंगे न्यूज के साथ में, फिर उसके बाद में विल मूव टू दी history and background of this news. So we are reading this news because this is covering GS paper 2, because it is talking about functional governance, institutional efficiency, rule of law क्या होता है, public services delivery कैसे होती है। फिर GS पेपर 3 डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, स्टेट कैपेसिटी, राइट, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ग्रोथ वर्सेस डिलीवरी गैप। देन GS पेपर 1 सोसाइटी, सोशल प्रोग्रेस वर्सेस सिंबोलिज्म, सिटीजन स्टेट रिलेशनशिप, राइट। ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन हियर। नाउ अब एक सवाल आता है हमेशा कि बेसिकली यूपीएससी का ही सबसे फेवरेट सवाल है कि व्हाई बेसिकली ग्रोथ मस्ट बी इंक्लूसिव और नॉट फंक्शनल, ठीक है। इसका आंसर मुझे तुमसे भी चाहिए, तो मेक श्योर कि आप इस चीज का आंसर लिखें। अच्छा, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है इस न्यूज में, तो इस न्यूज में बात हो रही है कि इंडिया जो है इंप्रेसिव लग तो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड को, बट जो रियल प्रोग्रेस है वो आएगी सिस्टम एक्चुअली काम कैसे कर रहा है फॉर ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। ब्यूटी क्या करेगा? अटेंशन करेगा, अट्रैक्ट, है ना। फंक्शनैलिटी क्या करेगी? वो सर्वाइवल और सक्सेस पे डिपेंड करेगी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस इंडिया द ब्यूटीफुल मीन, तो यहाँ पर बेसिकली एक ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हुए एक चीज बताई गई है दैट इंडिया इज एडमायर्ड ग्लोबली फॉर लाइक एंशिएंट सिविलाइजेशन, कल्चर के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक स्किल्स के लिए, सॉफ्ट पावर के लिए, क्योंकि योगा भी है यहाँ पर, सिनेमा इज देयर, स्पिरिचुअलिटी इज देयर, डिजिटल सक्सेस स्टोरीज, ठीक है, यूपीआई और आधार कार्ड, ठीक है। और उसके बाद में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, G20 वाज देयर, राइट। ग्लोबल लीडरशिप की अगर हम बात करें तो ये इंडिया की इमेज है, ठीक है, हाउ इंडिया इज सीन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको किसके बारे में पता चला? सॉफ्ट पावर के बारे में पता चला, ठीक है, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस थ्रू कल्चर, वैल्यूज, इमेज। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इमेज का मतलब ये नहीं है कि ये रियलिटी है, राइट। द प्रॉब्लम इज दिस ability, basically you have to understand the ability of India, right? So a country cannot survive on image alone क्योंकि citizens don't live in symbolisms, investors don't trust on appearances, ठीक है, democracies they will collapse अगर institution fail हो गया तो यहाँ पर एक बहुत टफ सा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इंडिया सच में efficiently काम करती है when it comes to working on the ground,
ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है हमें रियलाइज करवाते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग लैक का कर रहे हैं, राइट। अब what exactly is India the functional? तो functional का मतलब है it means the system that actually delivers, ठीक है। कोई slogans नहीं, announcement नहीं, कोई ranking नहीं, मतलब functional India का मतलब है effective institutions होंगे आपके पास में, ठीक है, जो properly deliver करेंगे justice, civil services that are neutral and competent, right? Governance की बात करें so that basically reaches to people, schemes जो है basically that should reach to the exact audience, exact people, लीकेज जितना कम हो सकता है उतना ज्यादा, अकाउंटेबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, राइट। जैसे कि वेलफेयर एग्जिस्ट करते हैं बट क्वेश्चन ये आता है क्या वो टाइम से रीच करते हैं, ठीक है। तो मतलब आपके पास कीवर्ड क्या है, लास्ट लास्ट माइल डिलीवरी, राइट। अब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लॉज अप्लाई इक्वली, ठीक है, कोई सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट नहीं है, राइट। बेसिकली नो आर्बिट्री स्टेट एक्शन इज देयर, राइट। सो सिटीजंस लॉस्ट ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट्स लाइक हेजिटेट, डेमोक्रेसी जो होगी वीक हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है। तो अब यहाँ पर इसके साथ में हम लोग हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने फोकस करा किस चीज पर, इंस्टीट्यूशंस और बिल्डिंग्स पर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस पर, प्लानिंग स्टेट ऑल्सो। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो हो गया वो थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है, ओवर सेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिली, राइट। फिर उसके बाद में 1991 रिफॉर्म्स, पोस्ट 1990 रिफॉर्म्स की बात करें तो जो हमारा फोकस था किस तरफ शिफ्ट हुआ, ग्रोथ की तरफ शिफ्ट हुआ, मार्केट्स की तरफ शिफ्ट हुआ, ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ शिफ्ट हुआ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स जो थे वो कहीं ना कहीं फिर से पीछे छूट गए, कैपेसिटी बिल्डिंग जो थी वो बहुत ज्यादा अनइवन थी। तो आज के टाइम पे इंडिया हैज लाइक मॉडर्न एम्बिशंस, बट अभी भी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। अब कंट्रीज दैट सक्सीडेड आर लाइक जापान, जर्मनी इज देयर, साउथ कोरिया इज देयर, राइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने एफिशिएंसी पे फोकस करा, उन्होंने डिसिप्लिन पे फोकस करा, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ पे फोकस करा, नॉट जस्ट ऑन ग्लोबल इमेज, ठीक है। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि ग्लोबल इमेज ठीक करने से तुम ज्यादा कुछ यू विल नॉट कम विद सम मेनी चेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली वार्निंग क्या दी जा रही है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये वार्निंग दी जा रही है कि अगर डेमोक्रेसी फोकस करेगा सिर्फ ऑप्टिक्स पर, फिर प्रेस्टीज पर, या फिर सिर्फ मेजर इवेंट्स पर, ठीक है, या फिर इग्नोर कर देगा हमारा ग्रीवेंसेस, सर्विसेज डिलीवरी, इंस्टीट्यूशन डी के, तो डेमोक्रेसी जो होगी हमारी प्रोसीजरल हो जाएगी एंड इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्ड क्या मिलेगा आपको, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। अब इतनी फंक्शनैलिटी की बात करें, इसकी फंक्शनैलिटी की जरूरत क्या है, क्योंकि इंडिया के पास में लार्ज इकोनॉमी है, ठीक है, ग्लोबल नेगोशिएटर्स आर देयर, राइट, सीबीएम इज देयर, ईयू इज देयर, G20 इज देयर, राइट। सो अ मैन्युफैक्चरिंग एस्पिरेंट विदाउट स्ट्रॉन्ग सिस्टम, राइट, पॉलिसीज फेल, रिफॉर्म स्टॉल, अपॉर्चुनिटीज आर लॉस्ट इन हियर, राइट। सो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे देयर इज नॉट अ कनेक्शन विद वन प्रॉब्लम ओनली, इट्स लाइक द होल प्रॉब्लम्स आर कमिंग अप, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज से कनेक्ट कर ले, पार्लियामेंट्री फंक्शन से, इलेक्टोरल रिफॉर्म से, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी से, जुडिशरी पेंडेंसी से। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी मेजर्ड इन प्रॉब्लम्स, राइट। अब अगर हम बात करते हैं इस चीज की, तो हमारे पास अभी इश्यू चल रहा है यूजीसी के, राइट। देयर इज लाइक a relation that is going with the European also. So thing is that we have to maintain the internal relations properly, ठीक है। बाहरी दिखाने से that we are developing a lot, इससे काम नहीं चलेगा, right? I hope this is clear to you. With this, what did we understand? We understood that effective institution is necessary with this, ठीक है। प्रॉपरली हमारे पास डिबेट्स होनी चाहिए, मेजरमेंट्स लेने चाहिए, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होगा तो ही फिर उसके बाद ग्राउंड रियलिटी हमारी अच्छी होगी, ठीक है। एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज आपने बना दी है, राइट, आपने सुन लिया that what that person is going through, you should also build compassion in yourself, you should have the capability, you have power, so you should have like compassion also, that you should work for people, schemes deliver होनी चाहिए जिनके लिए वो schemes बनी है, right, that section of the society। then it talks about the rule of law, ठीक है। जो रूल्स है, अगर हम यहाँ पे किसका एग्जांपल डाल सकते हैं, हम यहाँ पे यूजीसी का एग्जांपल डाल सकते हैं कि कैसे जो लॉज है वो इक्वली अप्लाई होने चाहिए, कोई सेलेक्टिव एनफोर्समेंट नहीं होना चाहिए, कोई आर्बिट्री स्टेट एक्शन नहीं होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद में यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है कि ऑफिशियल आंसर्स फॉर फेलियर, मतलब दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव द पावर, दे शुड सर्व अस, राइट, वी आर वोटिंग फॉर देम। सो accountability and transparency should be there, only then basically we'll move towards the development, ठीक है। चलो, question for you, write down the answer please।
जल्दी इतना टाइम थोड़ी ना। बी। वाई? वाई बी? Why the answer is B, Divyam? Yes, rest of the students. Which of the following best describe the concept of rule of law, absolute supremacy of the constitution, equality before law, supremacy of judiciary, absence of arbitrary power? तो हमारे पास आंसर इज, व्हाट डिड यू से दिव्यम? इज इट बी और डी? मैम बी। बी? व्हाई बी? डोंट यू थिंक द आंसर शुड बी डी? मैम क्योंकि लॉ सबके लिए सेम होता है, सब्जेक्ट्स टू बी द सेम लॉ। ओके, एंड वोंट इट बी एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर? So when we talk about equality before law, it is like a one part of the rule of law. ठीक है, पूरा whole concept नहीं है, right? So I've explained this before also. According to AVIC, rule of law has like three elements. कौन कौन से हैं? Absence of arbitrary power, equality before law, or supremacy of ordinary law, right? So the answer will be D. ठीक है, B जो है correct है, but as a feature. ठीक है, और यहाँ पर बात किसकी गई है? यहाँ पे बात की गई है, if we like talk with the essence, so with that it will be D. ठीक है, so correct option will be D. Got it? D, very good. The correct option is D. Okay, next question. Next question. Which of the with the reference to the transparency in governance, consider the following statement. It improves accountability, it reduces corruption, it delays decision making. The correct option we have is, ये तो बहुत आसान है, इतना थोड़ी टाइम लेंगे. A 1 and 2. A, good. Now, center working with full sensitivity for all communities, Murugu. Very important news. तो इमेजिन करो देयर इज अ बिग होल जहां पर हमारे पास बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों साथ में बैठे हुए हैं, एंड दिस हैपेंस ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन. ठीक है, तो इस दिन पर हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, शी स्टैंड्स एंड स्पीक. सो हर स्पीच इज नॉट जस्ट सेरेमोनियल. ठीक है, वो बेसिकली दिखाती है डायरेक्शन टू द होल कंट्री व्हिच इज मूविंग. So she begins with one clear message, and the message is the union government is working towards social justice, and India must stand united on national security, development, and self-reliance. अब इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली कि क्या मैसेज डिलीवर किया है, क्या क्या बेसिकली उन्होंने टॉपिक्स उठाए हैं, एंड विद व्हाट रेफरेंस शी केम अप विद, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो इन वन न्यूज विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बात करी यूनिटी अबव लॉ. सो बेसिकली प्रेसिडेंट ने हमें ये समझाया दैट एमपीज ऑफ इंडिया ग्रेट लीडर्स, राइट. जैसे कि हमारे पास महात्मा गांधी की उन्होंने बात करी, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बात करी, उन्होंने बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कोटेशन शी प्रेजेंटेड, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट. सो राम मनोहर लोहिया, सो ऑल ऑफ दीज बेसिकली दीज पीपल, राइट, उनका रेफरेंस लेके उन्होंने समझाया
उन्होंने इन लीडर्स का नाम लेकर समझाया कि उनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, राइट, बट दे हैड वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट विच वाज वेरी सिमिलर, राइट, ओपिनियंस उनके अलग अलग थे, बट उनकी बेसिकली उनका एग्रीमेंट जो था एक चीज पर था, दैट नथिंग इज ग्रेटर देन नेशन। तो उनका जो मैसेज था टू द एमपीज वो सिंपल कि हाँ, डिबेट होना नेचुरल है और वो होनी भी चाहिए, डिसएग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, अगर डिसएग्रीमेंट नहीं होगा तो विल नॉट मूव टुवर्ड द चेंज, चेंजेस नहीं आएंगे तो रेवोल्यूशन नहीं आएगा, रेवोल्यूशन नहीं आएगा तो विल नॉट अपग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि हाँ, डिसएग्रीमेंट होने चाहिए, डिबेट्स भी होनी चाहिए, बट नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहला आना चाहिए, वी शुड नॉट प्रायोरिटी आर इंटरेस्ट, ठीक है, इंडिविजुअलिटी यहाँ पर नहीं लेकर चलनी है, वी हैव टू थिंक अबाउट आवर नेशन, ठीक है। अब ये एक चीज के बारे में बताता है, इफ यू रिमेंबर द थ्योरी ऑफ जैनिज्म, अनेकांतवाद, राइट, अनेकांतवाद क्या बताता है कि हमारे पास अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, राइट, एक ही नजरिए से सच को समझने की कोशिश मत किया करो। सो इन द सेम वे एमपीज कैन कम विद डिसएग्रीमेंट, वो आ सकते हैं अपने अपने व्यू पॉइंट के साथ में, नो वन विल क्रिटिसाइज देम, बट देन अगेन आपको समझना होगा कि सबसे पहले आपको रिफॉर्म्स की तरफ चलना है, राइट। नाउ यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पर प्रेसिडेंट यूजेस अ वेरी पावरफुल मेटाफर, शी सेज द गवर्नमेंट इज रनिंग ऑन अ रिफॉर्म एक्सप्रेस। किस चीज के बारे में उन्होंने बात करी, उन्होंने बोला रिफॉर्म एक्सप्रेस। अब इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का मतलब क्या है, राइट, एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस वर्ड इज कवरिंग, दैट विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात करें तो इट इज लाइक अ फास्ट ट्रेन ऑफ रिफॉर्म्स टू अचीव, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आर देयर, वी आर अडेप्टिंग न्यू पॉलिसीज आल्सो, इंप्लीमेंट भी हो रही है, ऑल्दो ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट, बट देन अगेन अगर हम बात करते हैं सबसे पहले विकसित भारत की, डेवलप्ड इंडिया, राइट, तो उन्होंने बात करी है कि 2047 मैटर्स बिकॉज इट विल मार्क 100 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो ये रिफॉर्म जो है वो एक्सप्रेस करेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, गवर्नेंस रिफॉर्म्स को, सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को। तो आइडिया यहाँ पे ये है कि इंडिया कैन नॉट रीच 2047 विदाउट द न्यू सिस्टम। अगर ओल्ड सिस्टम के साथ ट्रेडिशनल नॉर्म्स और रूल्स फॉलो करते रहेंगे हम लोग, तो बेसिकली हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो इसकी जरूरत क्या है, जरूरत इसलिए क्योंकि वी नीड स्पीड राइट नाउ, वी नीड रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स के साथ साथ में वी ऑल्सो नीड एफिशिएंसी, ठीक है। अब दूसरी चीज उन्होंने बात करी सोशल जस्टिस के बारे में, उन्होंने कहा कि सोशल जस्टिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर this connects with the UGC also. So at a time when there is debate and concern over UGC regulations, this related to equity in higher education, right? So president basically sends reassurance, right? उन्होंने बोला Supreme Court of India has temporarily also there is one more thing. There is one more thing that you have to mention कि सुप्रीम कोर्ट ने टेम्परली इस चीज पर पोज लगा दिया, दे लाइक होल्ड दी यूजीसी, ठीक है। अब इस चीज के लिए भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर जो मेजर्स जिसके हम लोग कल भी बात कर रहे थे अबाउट इक्वालिटी एंड इक्विटी, राइट, सो दिस टेल्स अबाउट दिस एज शी मेंशंस दैट एवरीवन इज इक्वल, राइट, इन फ्रंट ऑफ द लॉ, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नए रूल्स है दैट कैन बी यूज्ड राइट नाउ अंटिल द court decides the matter later, right? So this is what has been said by the Supreme Court. अब वापस आते हैं प्रेसिडेंट की तरफ, तो उन्होंने ये बहुत साफ साफ बोला है कि गवर्नमेंट इज वर्किंग विद फुल सेंसिटिविटी, स्पेशली दलित्स के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, हमारे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है उनके लिए, और हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, राइट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस ग्रुप्स हैव लाइक फेस्ड हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, राइट, और हमेशा ये डर बना रहता है दैट बेसिकली डेवलपमेंट may leave them behind, right? तो उस चीज को कंसर्न हटाने के लिए she presented and she basically explained that why justice is in requirement, और उन्होंने ये चीज डायरेक्टली लिंक करी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, right? So basically she called him and she said that the architect of Indian constitution who always emphasized equality और social justice. So यहाँ पर एक important चीज और आती है कि social justice का मतलब है कि everyone like every citizen can exercise full rights बिना किसी discrimination के। सो सोशल जस्टिस कोई चैरिटी नहीं है, ठीक है, वो एक इक्वल राइट की बात करता है, डिग्निटी की बात करता है और अपॉर्चुनिटी की बात करता है जो सबको इक्वली मिलनी चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की बात आती है, तो प्रेसिडेंट ने एक बहुत हार्ड फैक्ट शी प्रेजेंटेड, राइट, एंड आई थिंक व्हिच यूपीएससी स्टूडेंट आल्सो रिमेंबर, उन्होंने बोला कि इन 2014 social security schemes they only cover like 25 crore people. So today about 95 crore Indians are covered by social security schemes. तो ये चीज क्या दिखाता है, ये चीज दिखा रहा है एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, फोकस जो है हमारा इंक्लूसिव गवर्नेंस का, राइट, एंड स्टेट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वल्नरेबल सिटीजंस आल्सो, राइट। अब इसके साथ साथ में नेशनल सिक्योरिटी और हमारा जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे।
जब उन्होंने ये मैसेज हमें दिया ना, व्हेन शी गिव दिस मैसेज टू अस, तो उन्होंने 3 चीज क्लियर करी, ठीक है? तो 3 चीजें उन्होंने प्रेजेंट करी हमें, ठीक है? तो उन्होंने बोला द वर्ल्ड सो द फेलियर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस थ्रू ऑपरेशन सिंदूर। जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया तो मतलब उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने एट वंस शी प्रेजेंटेड टू अस, ठीक है? उन्होंने सिर्फ मिलिट्री को प्रेज नहीं किया, ठीक है? तो व्हेन बेसिकली प्रेसिडेंट टॉक अबाउट द ऑपरेशन सिंदूर, शी इज नॉट ओनली प्रेजिंग द आर्मी, with one short statement she is sending three different messages to 3 different groups, ठीक है? एक सेंटेंस मतलब 3 पर्पसेस। सबसे पहला जो पर्पस था वो है मैसेज टू इंडियन सिटीजंस कि you are safe, right? So what is the first message that we have to the Indians, to the citizens, right? That we have strong military, ठीक है? So you do not have to worry as you are safe, right? तो यहाँ पर हमें देखने को मिला when she actually says the world so the bravery of Indian armed and forces, उनका मतलब है आर्मी हमारी स्ट्रॉन्ग है, राइट? हमारी जो बॉर्डर्स है वो प्रोटेक्टेड है, जो गवर्नमेंट और मिलिट्री है वो अलर्ट है, राइट? तो ये जो है कॉन्फिडेंस देता है टू अस, टू ऑर्डिनरी पीपल, राइट? एक कहीं ना कहीं रिएश्योरेंस मिलती है सिटीजन्स को दैट इंडिया कैन डिफेंड इटसेल्फ, सो कंट्री इज नॉट वीक या फिर वो हेल्पलेस नहीं है। तो पहला पर्पस यहाँ पे क्या हुआ? पहला पर्पस हमारे पास हुआ रीएश्योरेंस का, ठीक है? कि घबराओ मत, यू ऑल आर सेफ, राइट? व्हाई? बिकॉज वी हैव सच अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आर्मी, राइट? फिर उसके बाद में यस, नाउ उसके बाद में मैसेज टू द वर्ल्ड, इंडिया इज स्ट्रॉन्ग बट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? तो बाय मेंशनिंग दैट द वर्ल्ड सो इंडिया सेक्शन, शी इज सेइंग दैट इंडिया डज नॉट हाइड इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है? इंडिया जो है ओपनली एक्ट करती है और कॉन्फिडेंट है, तो इंडिया विल फॉलो लाइक रूल्स आल्सो एंड विल फॉलो इट्स प्रोटेक्ट इंटरेस्ट आल्सो। तो ये बेसिकली बताता है दूसरी कंट्रीज को दैट इंडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। India prefer peace but can act when it is needed, right? So this is important in international politics also. This is called showing strength without aggression. So the second purpose is understanding the global signaling, ठीक है? Right after this third message to MPs, that is to politicians, ठीक है? अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि don't fight on basically national security. What they are telling to us, अब उन्होंने प्रेस करने के बाद आर्म फोर्सेस को, राइट, हमें सिटीजन्स को, ऑर्डिनरी पीपल को बताने के बाद दैट यू आर आल्सो सेफ, शी अपील्स टू एमपीज, राइट? सो शी सेड दैट स्टैंड यूनाइटेड ऑन नेशनल सिक्योरिटी इवन इफ यू डिसएग्री ऑन पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है यस, यू कैन फाइट इलेक्शंस, यू कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, यू शुड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, बट डोंट डिवाइड द कंट्री ऑन सिक्योरिटी इश्यूज। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिवाइडेड पार्लियामेंट रहेगा वो नेशन को वीक ही करेगा। Enemies will take advantage of internal divisions. So she is saying that politics is temporary, national security is permanent. So the third purpose is telling, calling for unity. और इसका एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत जीता जागता नया नया है, बांग्लादेश, ठीक है? आई होप दीज 3 pointers आर क्लियर टू यू। अब इसके साथ साथ में शी ऑल्सो प्रेजेंटेड द स्वदेशी स्पिरिट, राइट? अब उन्होंने बेसिकली रेफर करा है कैंपेन फॉर स्वदेशी। अब ये कनेक्ट करता है हमारे सेल्फ रिलायंस के साथ में, इंडिजिनस प्रोडक्शन के साथ में, आत्मनिर्भर भारत के साथ में। तो आइडिया यहाँ पे ये है कि स्ट्रॉन्ग नेशन डिपेंड करेगा अपनी स्ट्रेंथ पर, ठीक है, ना कि किसी एक्सेसिव डिपेंडेंसी पर, राइट? कि हम लोग बाहर से हम लोग एक्सपोर्ट ही करे जा रहे हैं बस, राइट? सॉरी, इम्पोर्ट ही करे जा रहे हैं, राइट? सो दिस डिपेंडेंसी शुड बी रिड्यूस एज वी शुड लाइक फोकस ऑन आवर लाइक बिल्डिंग आवर थिंग्स, राइट? उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो है आर्टिकल 87। सो प्रेसिडेंट एड्रेस इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड अंडर आर्टिकल 87, जिसमें रिक्वायरमेंट होती है दैट प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। सो एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर अ जनरल इलेक्शन, एट द फर्स्ट सेशन ऑफ लाइक ईच ईयर। तो ये जो एड्रेस है ये मैंडेटरी होता है अनलाइक द स्पीच एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेशन which is now once a year due to first amendment. तो यहाँ पर ये है कि प्रेसिडेंट एड्रेस करती है पॉलिसी के एजेंडास को, राइट, फॉर द अपकमिंग पार्लियामेंट्री सेशंस, ठीक है? अच्छा, आई दिस इज अंडरस्टूड टू यू कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि क्या क्या थीम्स हमारे पास रहे हैं, तो पहले तो नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, नेशनल यूनिटी, ठीक है? यहाँ पे प्रेसिडेंट ने अर्ज करा है टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू स्टैंड टुगेदर ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटीज, राइट? स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज के बारे में, सॉवरेन एंड इंटीग्रिटी के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो होते हैं चाहिए वो इट शुड बी देयर,
but must not undermine the national interest. फिर उसके बाद विजन ऑफ विकसित भारत वाज आल्सो देयर, डेवलप्ड इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि कैसे डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 इज बेसिकली द गोल। फिर उसके बाद स्वदेशी सेल्फ रिलायंस के बारे में यहाँ पर बात की गई कि प्रेसिडेंट ने ये चीज भी हाईलाइट करी कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफ प्रमोटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑल्सो। ये जो डिपेंडेंसी है, ओवर डिपेंडेंसी है, वो रिड्यूस होनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए इंडिया के इंडस्ट्रीज को, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने रेफरेंस लिया फ्रॉम द different leaders with different ideologies, right? Mahatma Gandhi was there, right, who focuses on non-violence. Jawaharlal Nehru was there, whose ideology was of secular democracy. B.R. Ambedkar equality और justice की बात करते थे। राम मनोहर लोहिया बेसिकली ही टॉक्ड अबाउट सोशल रिफॉर्म्स, राइट, और उन्होंने इस चीज के लिए काम भी करा। फिर उसके बाद वी हैव दीनदयाल एज वेल, जिन्होंने बात करी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की। सो वी हैव डिफरेंट लीडर्स दैट शी हैज लाइक मेंशन्ड, और उनका रेफरेंस लेकर उन्होंने बताया कि ना आइडियोलॉजीज जो अलग अलग थी, ठीक है, उन्होंने अलग अलग चीजों पर काम किया, बट दे हैड लाइक वन गोल दैट वाज ऑफ आवर नेशन, ठीक है, मेकिंग आवर नेशन स्ट्रॉन्ग। तो यही चीज उन्होंने अर्ज करी एमपीज के साथ में भी कि आपको इसी चीज पर फोकस करना है। डिफरेंसेस क्रिएट होना मैंडेटरी है, राइट, डिफरेंसेस नहीं होंगे तो विल नॉट मूव टुवर्ड्स द बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट, राइट। बट देन अगेन डिवीजन इस बेसिस पर नहीं होना चाहिए कि कोई बाहर वाला इस चीज का आकर फायदा उठा जाए। नाउ आफ्टर दिस शी आल्सो टॉक्ड अबाउट सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन। सो यहाँ पर उन्होंने बताया कि सोशल जस्टिस इज नॉट जस्टिस जस्ट वेलफेयर। इसका मतलब है फुल एक्सरसाइज ऑफ राइट शुड बी देयर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है इक्वालिटी के बारे में, डिग्निटी के बारे में, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, राइट। तो ये जो स्पीच है, राइट, दिस नोटेड द इंक्रीज इन सोशल सिक्योरिटी कवरेजेस आल्सो। मतलब फ्रॉम 25 crores that was in 2014 to 95 crore people today. This suggests like broadening of like health insurance there, pension system is also there, workers protection is also there, welfare schemes are also there, right. उसके बाद उन्होंने बात करी vulnerable groups की और marginalized groups की। उन्होंने मेंशन किया, स्पेशली मेंशन किया दलित्स को, ओबीसी को, ट्राइबल कम्युनिटीज को, और जो हमारे बाकी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली गारंटीज दैट दे विल बी गिवन सोशल जस्टिस आल्सो, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद में रिकग्निशन ऑफ आर्म फोर्स आल्सो डन, कि कैसे आवर मिलिट्री इज आल्सो स्ट्रांग एंड देयर इज नथिंग टू बी वरी अबाउट, ठीक है। तो ये सारे के सारे इश्यूज यहाँ पर प्रेसिडेंट ने मेंशन किए। अब आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। चलो, वन क्वेश्चन। What is the correct answer? With reference to the President address to the Parliament, consider the following statement. It is addressed to both House of Parliament assembled together, right? And then it outlines the policies and program of the government. It is prepared by the President himself. सो ये तो मैंने बताया कि इट इज एड्रेस टू द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, दोनों हाउसेज वहां पे प्रेजेंट होते हैं, देन बेसिकली मीटिंग इज हैपन। तो वी हैव वन है, ठीक है, तो ये कट गया। आफ्टर दिस इट आउटलाइंस द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज और प्रोग्राम जो है whatever like they are coming programs of the government of the coming year that are explained, right. So this is also correct, right. So then it is prepared by the president himself. Nahi, it is not prepared by president himself. Basically it is prepared by the council of ministers, ठीक है, the government, and the president only reads it, ठीक है। तो ये किससे prepared है? council of minister। Is this understood? So correct option is what? चले अगली न्यूज पर। Mature and pragmatic
on India EU FTA. ठीक है, so we are going to understand this news, the relation between this with FTA, connecting it with these two words, mature and pragmatic. ठीक है, अब दो neighbors, ठीक है, दोनों, एक neighbor finally is becoming strong day by day, ठीक है, year by year, एक nation, right, who is strong, and finally they are moving towards something that they have been like working for years, right? So they are like trying for decades to make a deal to trade easier with each other. तो ये कोई स्मॉल डील नहीं थी, छोटी मोटी डील नहीं थी, इट वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन वाली डील थी इंडिया की पूरी ट्रेड हिस्ट्री में, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट कितना टाइम लास्ट करी, अराउंड लाइक 20 ईयर्स, है ना? सो बोथ साइड्स हैव लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज, डिफरेंट इकोनॉमीज की बात थी, डिफरेंट सेंसिटिविटीज की बात थी, तो मेकिंग देम अग्री ऑन हाउ टू रिड्यूस टैक्सेस, प्रोटेक्ट कैसे कैसे करे जॉब्स को, रिस्पेक्ट कैसे करे एक दूसरे के रूल्स को, और एक्सपेंड कैसे करे मार्केट्स को, राइट? सो दिस डिसीजन वाज टफ, but they eventually reached an agreement in January 2026. Again, this news that we are going to discuss is, we are going to compare it with what Trump is doing. ठीक है, तुम कहीं ना कहीं सीट से रिलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे जो तो वर्ड्स दिए गए हैं, मेच्योर एंड प्रेगमेटिक, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, कैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात होती है, एंड दे बोथ अग्री टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ईच अदर, ठीक है, दे डिडंट डिसरिस्पेक्ट, दे डिडंट से कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोग टैरिफ्स लगा देंगे, राइट? नहीं, दे अंडरस्टूड, दे टुक टाइम, इतना साल में अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट आ रहा है तो इट मींस बोथ द कंट्रीज वांटेड टू सेटल एट सम पॉइंट, राइट? दे वांटेड टू नेगोशिएट बट बाय रिस्पेक्टिंग ईच अदर, नॉट बाय डिसरिस्पेक्टिंग ईच अदर, ठीक है? तो यही चीज की हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे इस मैच्योर का और प्रेगमेटिक का मतलब क्या है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स मैच्योर प्रेगमेटिक यूज हुए हैं, ठीक है? मैच्योर का मतलब है, जब यहाँ पर इस न्यूज में मैच्योर वर्ड आता है तो इसका मतलब है इंडिया एंड यू एक्सेप्टेड रियलिटी, उन्हें पता था कि हर कंट्री के पास में एक डोमेस्टिक प्रेशर होता है, हर गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, नॉट एवरीथिंग कैन बी अग्रीड एट वंस, राइट? तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमें या तो सब कुछ दे दो या फिर कोई डील नहीं होगी, और अगर कोई डील नहीं होगी तो जो भी हमारे रिलेशन रहेंगे उस पर टैरिफ बेसिस रहेंगे, ठीक है? तो दे सेड दैट लेट्स डू इट व्हाट इज पॉसिबल राइट, जितना अभी अभी हो रहा है उतना उतना करते हैं, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज मेच्योरिटी। मेच्योर इज नॉट बीइंग इमोशनल, या फिर ईगो ड्रिवन नहीं हो जाना है, या फिर अनरियलिस्टिक नहीं हो जाना है, राइट? सो दे डिड नॉट फोर्स ईच अदर, या फिर दे डिड नॉट थ्रेट टू वॉक अवे, परफेक्ट कंडीशंस वाज प्रेजेंटेड, ठीक है? उन्होंने समझा कि पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स क्या होती है, फार्मर्स को भी समझा, इंडस्ट्रीज को भी समझा, राइट? उन्होंने समझा कि ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज नोन एज मेच्योरिटी। pragmatic क्या होता है, choosing what works not what looks ideal on paper, ठीक है? pragmatic is what actually works, reality में कैसे हम लोग एक चीज को implement कर सकते हैं, right? So basically it tells us that on what way we should move, right? practical thinking की यहाँ पर बात हो रही है, step by step progress की यहाँ पर बात हो रही है, results पे focus किया जाएगा, slogans पे नहीं, ठीक है, कि headlines बनकर आ गए हो and people are like talking about you know what this leader is doing, नहीं, दोनों नेशंस ने आराम से बैठ के पहले डिसाइड किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड व्हाट मेजर्स वी हैव टू टेक, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू लाइक ओपन ऑल मार्केट्स इमीडिएटली बेसिकली, और या फिर ऐसे सारे डिस्प्यूट और जो भी चीजें हैं वो एक एग्रीमेंट में सॉल्व करने की, या फिर किसी सेक्टर को हर्ट करने के लिए, राइट? एग्रीकल्चर या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज को नहीं, उन्होंने बेसिकली चोज करा जहां पे दोनों ही साइड का एग्रीमेंट जो है एक्सेप्ट हो, राइट? विच कैन बी इम्प्रूव्ड लेटर ऑल्सो। तो ये कहीं ना कहीं में रियल बेनिफिट्स देंगे, कोई थ्योरेटिकल प्रोमिसेस यहाँ पर नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल प्रेगमेटिक का मतलब क्या है, दैट दिस वर्क्स इन रियल लाइफ, राइट? अब यहाँ पर इस बेसिकली न्यूज के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो अब क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास ट्रेड होते हैं कंट्रीज के, वो इसी बेसिस पर फॉलो हो जाते हैं, बिकॉज डिसीजन मेकिंग जो होती है इट ऑलवेज कम्स इन haste, for example, most of the countries trade in this way, that everything or nothing, our way or no way. But here when we talk about India and you, India protected its sensitive sector and you protected its political interest, yet both move forward. So this shows what, this shows to us diplomatic wisdom. So this is why these two words are used in here, ठीक है? अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी बात करा था कि इस डील को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल डील्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट को कवर करती है, अबाउट 2 बिलियन पीपल, राइट? एंड इट रिप्रेजेंट अबाउट 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड इट इज लाइक कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ ग्लोबल ट्रेड ऑल्सो। तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ इंडिया लाइक विच इज एवर मेड।
तो यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होता है, रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स, ठीक है, बहुत सारे गुड्स पे जो भी ट्रेड होगा बिटवीन ईयू एंड इंडिया, ये बेसिकली हेल्प करेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स में, टेक्सटाइल्स में, मरीन में, बेसिकली हमारे जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स होंगे, और बेसिकली एंड गिविंग दी सम benefits to EU as well, right? तो ये बहुत ज्यादा important हो जाएगा for us also. This is going to like focus on real benefits now, right? Rather than like perfect rules that might like never be agreed. तो मतलब they chase good and doable, not over perfect but impossible, right? That only looks perfect on the paper only. No, they are basically focusing on something which could be like work on reality also. अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे मेच्योर की, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट बोथ साइड्स हैड टू लाइक रिस्पेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, रिस्पेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि फूड हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इंडस्ट्री प्रोटेक्शन होगी, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हो गई, तो उन्होंने अग्री करा, राइट, टू ट्रेड नाउ, और जितनी भी डिटेल्स होंगी उनको बाद में फिक्स कर लिया जाएगा, इंस्टेड ऑफ लाइक लेटिंग परफेक्ट डिमांड्स ब्लॉक प्रोग्रेस, नहीं, दे एक्टेड नॉट जस्ट ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स, बट उन्होंने फोकस किस चीज पर करा, लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेशन पर फोकस करा, स्टेबिलिटी पर फोकस करा। तो ऐसे काइंड ऑफ नेगोशिएशन जो है हमारे पास में, जहां पे दोनों ही पार्टनर्स बैलेंस लेकर चले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी, ठीक है। अब जो ये इंडिया ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अब एफटीए जो हो रहा है इंडिया और ईयू के बीच में, ये है क्या, मैंने पहले भी बताया है। सो दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ पैक्ट बिटवीन टू ट्रेडिंग पार्टनर्स, जो कि रिड्यूस करेगा या फिर एलिमिनेट करेगा टैरिफ्स को, ठीक है, जो टैक्सेस होंगे इंपोर्ट्स पर, एक्सपोर्ट्स पे, ओपन मार्केट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल आल्सो बी देयर, इंक्रीज करेगा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, रिमूव करेगा जितने भी हमारे बैरियर्स आर देयर इन बिजनेसेस, राइट। सो द इंडिया ईयू एफटीए इन्होंने फाइनलाइज किया है इन जनवरी 2026, ये हमारा कहीं ना कहीं लॉन्ग पेंडिंग डील रहा था, राइट। अब नाउ फाइनली आफ्टर मेनी डिकेड्स, राइट, आफ्टर टॉकिंग लाइक 2 डिकेड्स, फाइनली ये चीज जो है कंप्लीट हो गई है। तो ये कोई एक इट इज नॉट लाइक द अनदर डील दैट इज हैपनिंग, नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। अब छोटी सी डिटेल में हम लोग ये भी मेंशन कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि एफटीए है क्या, राइट। तो अगर हम एफटीए की बात करें, जैसे मैंने बताया, तो ये टैरिफ्स को रिड्यूस करेगा, राइट। इट विल बी लाइक मोस्ट ऑफ लाइक the tariff, most of the goods like will go with the zero tariffs immediately, or soon after implementation, and India has like agreed to reduce tariffs on about 97.5% of EU export। इसका मतलब ये है इंडिया गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स, लेदर्स, और जितना हमारा एग्रीकल्चर रहेगा, और जितना हमारा मशीनरी, राइट, दैट विल बी लाइक इजीली एक्सेसिबल टू EU मार्केट्स, राइट। EU गुड्स जैसे कि हमारे ऑटोमोबाइल्स होगी, केमिकल्स होगी, कैपिटल गुड्स होगी, या फिर हमारी जितनी भी हाई एंड मशीनरी रहेंगी, उनको और ज्यादा एक्सेस मिलेगा टू द इंडिया, ठीक है। अब हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इस सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, वी हैव टू मेंशन, ठीक है। हम लोग बात करेंगे CBAM के बारे में, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न जो हमारे पास आया, दैट इज ऑफ CBAM, ठीक है। तो दिस इज अ टैक्स दैट यूरोपियन यूनियन लाइक पुट्स इंपोर्ट गुड्स बेस्ड ऑन द हाउ मच पोल्यूशन इज क्रिएटेड, जब हम लोग वो गुड्स बना रहे हैं। तो सिंस इंडियन इंडस्ट्री इज लाइक यूजिंग लॉट्स ऑफ कोल, और हमारा हाई कार्बन एनर्जी यूज करती है, तो ये जो टैक्स है वो इंडियन प्रोडक्ट्स को और ज्यादा एक्सपेंसिव बना सकता है यूरोप में। तो इंडिया कुड नॉट गेट एनी स्पेशल एग्जेम्पशन फ्रॉम दिस रूल, जो कि ड्रॉबैक हो सकता है इस एग्रीमेंट का। हाउएवर द EU अप्लाइज दिस टैक्स टू ऑल कंट्रीज इक्वली, राइट। तो इंडिया हैज लाइक सिक्योर्ड अ सेफ्टी क्लोज आल्सो, कि अगर कभी EU ने रिलैक्सेशन दिया किसी और कंट्री को इन कमिंग फ्यूचर, ठीक है, तो इंडिया एक्सपोर्टर्स विल गेट द सेम बेनिफिट। So looking ahead, the editorial and basically the news says that we can get benefit out of this. Yes, अभी अगर हम बात करें CBM की, मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट की, तो yes, somewhere will be having taxes, but then again फ्यूचर में देयर कुड बी चेंजेस आल्सो, अगर वहां पे चेंजेस होते हैं, अगर वहां पे EU इज गिविंग एडवांटेजेस टू अदर कंट्रीज आल्सो, तो कहीं ना कहीं हमें भी बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने की संभावनाएं हैं, राइट। तो अब यहाँ पर बात हो रहा है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स विल लाइक गेट द सेम बेनिफिट्स, बट देन इट इज आल्सो टॉकिंग अबाउट कि जो रिक्वायरमेंट है, राइट, हमें बेसिकली रिक्वायरमेंट है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर हमने ये ट्रेड साइन किया है एंड दिस इज व्हाट वी आर बिल्डिंग, तो हमारे पास इजियर बिजनेस रूल्स होने चाहिए, लेबर रिफॉर्म्स होने चाहिए, राइट, क्योंकि दिस डील विल लाइक आल्सो टेक टाइम टू कम इनटू फोर्स, बिकॉज़ इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू 27 यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड अप्रूव्ड बाय ऑल द EU कंट्रीज, और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी अप्रूव होना पड़ेगा। सो इंडिया शुड लाइक पुश फॉर फास्टर अप्रूवल्स। यहाँ पर जो हमारे पास पूरी न्यूज में बात की गई है, दैट गुड पॉलिसी इज नॉट अबाउट रिजेक्टिंग डील्स, बल्कि
imperfections को भी आप लोग साथ में लेकर चल रहे हैं, and you are trying to understand what are the problems that we are facing. और अगर long term में वो चीज लेकर ही चलनी है, तो अगर if that problem is like arising again, तो what are the measures that we can take, ठीक है? तो हमारे पास एक balanced approach होनी चाहिए, balanced decision making होनी चाहिए, accepting trade off should be there, thinking about the long term rather than being rigid or ideological, जैसे कि most of the people, most of the leaders actually do and actually did, ठीक है? तो यहाँ पर ये difference हमें देखने को मिला है, right? Yes, you can compare it with US leader, and you can compare it with India and you, ठीक है? I hope the news is understood you. So this is the question that you have, and it is a homework for you. Make sure that you're writing the answer in the comment section, and for the PDF will be uploaded in the comment section in few hours. So this is it for today. I'll see you tomorrow at the same time.